کیا پھر یہ پیسے جو آپ نے باہر بھیج کے ڈبو دیے وہ کیا پاکستان میں نہیں انویسٹ ہو سکتے تھے؟ سیاسی بیان کچھ اور ہے اور جو اپنی حرکتیں ہیں چھپی ہوئی وہ کچھ اور ہے۔ حکومتی ٹیم نے چیئرمین تحریک انصاف کو الزامات کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ دانیال عزیز نے آف شور کمپنیاں خان صاحب کی ایجاد قرار دے دی۔ کہتے ہیں شوکت خانم ہسپتال کے $18 ملین ڈبوئے گئے۔ پرویز رشید بولے عمران کب اپنا گھر بیچ کر نقصان پورا کریں گے۔ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے تمام ریٹائرڈ ججز کے نام وزیراعظم آفس کو بھجوا دیے گئے۔ پینما کی جو لیکس ہوئی ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کو افیکٹ کرتی ہے۔ موجودہ حکمرانوں کی اخلاقی ساکھ ختم ہو گئی ہے۔ آف شور کمپنیز کا شور کپتان کو پھر سے ڈی چوک کی یاد ستانے لگی۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس بار لمبے دھرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو کچھ منظر عام پر آیا وہ تو ابتدا، ابھی 1 کروڑ دستاویزات آنا باقی ہے۔ کوئی انکوائری کمیشن کو مانے گا نہ ہی معاملے کو دبنے دیں گے۔ سراج الحق نے حکمرانوں کو کرپشن بچاؤ قطرے پلانے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، پاناما لیکس کے چرچے پنجاب اسمبلی تک جا پہنچے۔ گرما گرم معاملے پر بحث کی اجازت نہ ملی تو اپوزیشن کا پارا چڑھ گیا۔ ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، پھر واک آؤٹ کر گئے۔ رانا ثناء اللہ نے موقع پا کر شیطانی لیکس کا نام دے دیا اور تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں تحریک التوا۔ دہشت گردوں، جرائم پیشہ عناصر اور فراریوں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ جنوبی پنجاب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مربوط آپریشنز جاری، پاک فوج کی معاونت بھی حاصل۔ ترجمان ISPR نے اب تک ہونے والی پیش رفت سے متعلق تفصیلات جاری کر دی۔ غیر ملکی خفیہ ایجنسیز کے گھناؤنے عزائم کڑیاں بھارت کے بعد افغانستان سے بھی جا ملیں۔ را ایجنٹ کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی اداروں نے چمن سے افغان انٹیلیجنس کا ایجنٹ دھر لیا۔ نشاندہی پر کمپاؤنڈ سے دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ دشمنوں کے چہرے عالمی سطح پر بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ سول اور عسکری قیادت کا خفیہ ایجنسیوں کی پاکستان میں مداخلت پر گہری تشویش اور آپریشن ضرب اسب کی کامیابیوں پر اظہار اطمینان۔ وطن عزیز کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی سازشوں سے سختی سے نمٹنے کا عزم۔ MKM کی ایک اور پتنگ کٹ کر کمال کی سائیڈ پر آ گری۔ رکن سندھ اسمبلی بلقیس مختار نے بھی پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کر لیا۔ کہتی ہیں MKM قائد کو خوشامدی پسند ہیں، ماؤں بہنوں کے تقدس کی بھی کوئی فکر نہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے ہوتی تو اب تک 9-0 بند ہو چکا ہوتا۔ وکٹیں گرنے کے باوجود MKM کا ووٹ بینک اب بھی قائم ہے۔ مصطفیٰ کمال کی باتوں میں کتنا دم ہے کل پتہ لگ جائے گا۔ کراچی میں دنگل کی تیاریاں مکمل، پرائیویٹ گاڑیوں میں انتخابی سامان کی ترسیل۔ جماعت اسلامی اور نون لیگ نے مخالفین کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ تحریک انصاف متحدہ کو اپ سیٹ شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خبردار، ضمنی الیکشن کے دوران کوئی گڑبڑ کا نہ سوچے، فول پروف سیکیورٹی پلان تیار۔ 4000 پولیس اہلکاروں کی صورتحال پر کڑی نظر ہوگی۔ رینجرز پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تعینات ہوں گے۔ عوام بلا خوف و خطر باہر نکلیں اور من پسند امیدوار پر ٹھپے لگائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے DG رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کی بھی ملاقات، امن و امان اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو۔ MKM منی لانڈرنگ کیس کا اہم کردار سرفراز مرچنٹ پاکستان سے ہو کر گئے تو کراچی میں دھوکہ دہی کا مقدمہ سامنے آ گیا۔ گاڑی چھیننے اور 2.5 کروڑ ہتھیانے کا الزام۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے 21 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
PIA को कंपनी बनाने के लिए रनवे क्लियर। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की खसूसी कोशिशों से हुकूमत और अपोजिशन में बिल पर इत्तफाक। 11 अप्रैल को पार्लियामेंट इजलास में पेश किया जाएगा। हेडक्वार्टर कराची में बरकरार रहेगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहों और मराहत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मुकद्दमात का मामला फिर पर टाल दिया गया। राजनपुर को छोटू गैंग से निजात दिलाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक। ऑपरेशन नवे रोज में दाखिल। पंजाब रेंजर्स भी एहलकारों की मदद को पहुंच गई। डाकुओं के ठिकानों पर मार्टर गोले फायर। लुटेरों की जानिब से भी मज़ाहमत का सिलसिला जारी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में खौफ के साए। होटल से 3 अफराद की गला कटी लाशें बरामद। मरने वाले रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करते थे। किसने मारा, क्यों मारा, जाती दुश्मनी या कोई और मामला? पुलिस हर जाविये से तहकीकात में लग गई। पनामा लीक्स का बारूद मिलते ही हुकूमत और इमरान खान ने एक दूसरे पर चढ़ाई कर दी। हुकूमती टीम ने भी चेयरमैन PTI को इल्जामात के कटहरे में खड़ा कर लिया। दानियाल अजीज कहते हैं बैरूने मुल्क इन्वेस्टमेंट करके शौकत खानम अस्पताल के $18 मिलियन डिबोए गए। परवेज रशीद ने सवाल उठाया कि इमरान खान कब अपना घर बेचकर शौकत खानम वापस चले गए। जी हाँ, तफसीलात आप भी देखिए। पनामा पेपर्स ने हुकूमत और इमरान खान को लफ्जी गोलाबारी का नया मौका दे दिया है। इमरान खान ने वजीर आजम पर सवालात उठाए तो हुकूमती वज़रा ने भी मैदान लगा लिया। ऑफशोर कंपनीज इमरान खान साहब ने इजाद की। मिलियंस ऑफ डॉलर्स शौकत खानम ट्रस्ट ने मुल्क से बाहर भिजवाए और ऑफशोर कंपनीज में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में इन्वेस्ट किए। क्या फिर ये पैसे जो आपने बाहर भेज के डुबो दिए वो क्या पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट हो सकते थे? दानियाल अजीज ने दावा किया कि बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट करके शौकत खानम अस्पताल को $18 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने चेयरमैन PTI को इल्जामात के जवाब देने का चैलेंज भी किया। हमने तो कमीशन बना दिया, उसमें आके हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म और उनके बच्चों का दिफा किया और ये सवाल भी उठाया कि शौकत खानम अस्पताल का नुकसान कैसे पूरा होगा। आज तक हम पर जितने इल्जाम लगे वो गलत साबित हुए। पनामा पेपर्स में कौन सी चीज लिखी है जिसमें ये लिखा हो कि उनके बच्चों ने कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी काम किया, वो बताइए मुझे। इमरान खान ने ये वादा किया था कि अगर ये डूबे हुए पैसे मैं वापस ना ला सका तो मैं अपना घर बेच के शौकत खानम का ये नुकसान पूरा करूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना था कि शौकत खानम अस्पताल के चंदे और खैरात के पैसे डबोने पर पहले भी इमरान खान से जवाब मांगा था, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। अब इमरान खान को वोटों के जरिए नॉकआउट करेंगे। पनामा लीक्स के इशू पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मोर्चे संभाल लिए। इमरान खान कहते हैं वो मामला दबने नहीं देंगे। नवाज शरीफ को कौम से सच बोलना होगा। तहरीक इंसाफ ने पनामा लीक्स पर कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी, जबकि पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली बनाने पर भी इत्तफाक हो गया है। पनामा लीक्स को लेकर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। आपका पास मनी ट्रेल भी नहीं है, आप पैसा बाहर भी भिजवा देते हैं, आप डिक्लेयर भी नहीं करते। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। ये करप्शन भी है और ये टैक्स इवेजन भी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है। डी चौक मुझे याद भी आ रहा है और हो सकता है कि हो सकता है अब इतने लंबे धरने की जरूरत ही ना पड़े। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने हुकूमत को फिर निशाने पर ले लिया। कहते हैं पनामा लीक्स के इशू को दबने नहीं देंगे। ये सब डरे हुए हैं। ये तो 1 करोड़ से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी तो ये पहली किस्त आई है। दूसरी तरफ पनामा लीक्स के मामले पर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से राब्ता किया है। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि अपोजिशन लीडर ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। कल खुर्शीद शाह से उनके चैम्बर में मुलाकात होगी और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। तहरीक इंसाफ पनामा लीक्स का मामला पार्लियामेंट तक भी ले गई।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म के ख़ानदान का नाम आने से कई इखलाकी और कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं। ये मामला इंतखाबी बेज़ाब्तगी, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा लीक्स के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का काम शुरू कर दिया गया। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजों के नाम वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिए। बिल्कुल, और कमीशन के लिए 3 नामों का चुनाव किया जाएगा। तफसीलात क्या हैं, बताएंगे फहीम अख्तर। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन तो जारी ना हो सका, मगर जराए बताते हैं कि इस कमीशन के सरबराह और मेंबरान की तलाश के लिए वजारत कानून और वजीर आजम ऑफिस ने मुशावरत शुरू कर दी है। जराए का कहना है कि वजारत कानून ने इब्तदाई तौर पर चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नाम वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दिए हैं। जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1 और हाई कोर्ट्स के 2 रिटायर्ड जजों का इंतखाब किया जाएगा। जराए ये भी बताते हैं कि इंक्वायरी कमीशन के लिए ऐसे जजों का चुनाव किया जाएगा जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ ना उठाया हो। मुंतखब जजों से पहले राब्ता करके रजामंदी ली जाएगी और फिर वजीर आजम की मंजूरी से वजारत कानून जुडिशल कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जराए कहते हैं कि कमीशन के सरबराह और अरकान की तादाद पर मुशावरत की जा रही है। नामों का हतमी फैसला वजीर आजम सेक्रेटेरिएट करेगा। वजीर कानून जाहिद हामिद, मुशीर बैरिस्टर जफरुल्ला और सेक्रेटरी कानून इस मामले का हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया है। अगर इंक्वायरी कमीशन बन रहा है तो उसकी तहकीकात का इंतजार किया जाए। एक तूफान है, वक्ती तौर पर खड़ा हो गया है। किसका क्या बनता है, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, पूरी दुनिया उसमें है। किसी जमाने में विकीलीक्स आ गया था, उससे पता नहीं एक तूफान खड़ा कर दिया था। अभी दूसरा लीक्स है, कल कोई और लीक्स आ जाएगा। तो झूठ सच चलता है दुनिया में, लेकिन उसको नॉर्मल लेना चाहिए, क्योंकि जो चीजें तहकीक तलब हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो कुछ किया गया इसकी असल बुनियाद क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बना ही दिया है, तो मेरे ख्याल में इसको अब कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो आगे जाकर क्या करते हैं। आपको बताएं, पनामा लीक्स ने पंजाब की अपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन ने न सिर्फ मिलकर एहतजाज और वॉकआउट किया, बल्कि वजीर आजम के इस्तीफे का मुत्तफिका मुतालबा भी कर डाला। हुकूमत ने पनामा लीक्स के खिलाफ और अपने हक में करारदाद मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली के इजलास का अहवाल हमें बताएंगे लाहौर से मियां असलम। पनामा लीक्स के चर्चे पंजाब असेंबली तक भी जा पहुंचे। इजलास के दौरान मुत्तहिदा अपोजिशन ने पनामा लीक्स पर बहस की इजाजत मांगी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ये जवाब मिलते ही अपोजिशन ने ईवान में हंगामा बर्पा कर दिया और स्पीकर डाइस का घेराव करके शदीद एहतजाज किया। इस पर भी अपोजिशन अरकान का गुस्सा ठंडा ना पड़ा तो सभी इजलास से वॉकआउट कर गए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों के ऊपर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बने, जिसके अंदर नैब और FIA और तमाम FRB, वो तमाम अदारे, FBR, वो तमाम अदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करें। हुकूमत ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने पनामा लीक्स के खिलाफ और हुकूमत के हक में करारदाद मंजूर करा ली। शायद ये किसी के इशारे पे जो है ये दोबारा मुल्क में हंगामा राई का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुहाज़राई के दौरान ईवान की कार्रवाई भी चलती रही और दोनों जानिब से तनकीद के वार भी होते रहे। इजलास में प्री बजट बहस के दौरान अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ दिल की खूब बड़ास निकाली। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि पनामा लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाई जाए। अगर जुर्म साबित हो जाए तो नवाज शरीफ को आइसलैंड के वजीर आजम की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने हुक्मरानों को करप्शन से बचाव के कतरे पिलाने की तजवीज भी दे दी। ये जो
پاناما میں پوشیدہ خزانوں کے حوالے سے حقائق سامنے آ گئے ہیں. اس سے موجودہ حکمرانوں کی اخلاقی ساکھ ختم ہو گئی ہے. چیف جسٹس کے سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قرار دیا جائے, بنایا جائے, اور جب وہ فیصلہ کر لے کہ واقعی وزیر اعظم اس میں انوالو ہے اور اس کا خاندان بھی اور کوئی چیز اب چھپی ہوئی بھی نہیں ہے, تو پھر ٹیکس چھپانا, اپنی دولت کو چھپانا, یہ خود ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ وزیر اعظم وہی کام کرے جو آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے کر کے اپنی پارٹی کو عزت بخشی ہے. کو آگاہ کریں, لاہور کے علاقے اسلام پورہ کے ہوٹل سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. قتل ہونے والوں میں دکان مالک کا بھانجا شہریار نعیم اور عمر شامل ہیں. آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. لاہور کا علاقہ اسلام پورہ جس کے ہوٹل سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں کہ قتل ہونے والوں میں دکان مالک کا بھانجا شہریار نعیم اور عمر شامل ہیں. اسی پر مزید تفصیلات لے لیتے ہیں. ہمارے نمائندے عطا چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا چوہان, اپڈیٹ کیجیے گا, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی, اب سے یہ تقریباً تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. یہ تقریباً پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق 6 سے 7 گھنٹے پہلے زین العابدین جو زخمی ہوا تھا اس کی اطلاع جو ہے نا, اس پہ جو پولیس نے کارروائی کی, تب سے پتہ چلا کہ جاوید نامی جو مانسیرا کا رہنے والا ہے اس نے پہلے ان تینوں افراد کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی اور مرچیں ڈالنے کے بعد تینوں کے گلے ذبح کیے, جب تک کہ اس کو اس وقت تک زین العابدین کو ہوش آ چکا ہوا تھا, لہذا وہ بچ گیا. جبکہ اس جو دکان ہے رحیم ٹکا شاپ, اس کا مالک رحیم جب پہنچا یہاں پر تو اس نے پہنچتے ہی دروازے توڑ کر جو ان تینوں کی جو ہے نا وہ لاشیں وہ نکالی اور وقوع سے پولیس کو آگاہ کیا ہے. اب ان تینوں کی لاشیں جو ہے میو ہسپتال کے ڈیڈ ہاؤس میں پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں. جبکہ تفتیش کے حوالے سے پولیس سے جو ایس پی نوید کا کہنا تھا کہ جاوید کے حوالے سے ابھی چھاپہ ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے. یعنی ابھی تفتیشات جاری ہیں. عطا چوہان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بریکنگ نیوز نے آپ کو. بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقے جوہان میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے اور 15 دہشت گرد بتائے جاتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت انوار الحق کے مطابق کالعدم تنظیم کے 2 کیمپ تباہ جبکہ بھاری اسلحہ اور بارود برآمد ہوا ہے. جی ہاں, یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. کالعدم تنظیم کے 2 کیمپ تباہ, بھاری اسلحہ بارود برآمد کیا گیا ہے. ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں. برآمد اسلحے میں بارودی سرنگیں, بم بنانے والے آلات اور راکٹ شامل ہیں. اہم خبر کوئٹہ سے. کلات کے علاقے جوہان میں فورسز کا سرچ آپریشن, 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ابھی آپ کو بتائیں, بلوچستان سے را کے ایجنٹ کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی اداروں نے افغان انٹیلیجنس کا ایجنٹ بھی گرفتار کر لیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے. قوم فورسز کے ساتھ ہے. مزید بتائیں گے کوئٹہ سے محمد اکرم. ایف سی اور حساس اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی. چمن کے پاک افغان سرحدی علاقے بوگرا سے ایک افغان ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے. افغان ایجنٹ سے بڑی مقدار میں اسلحہ, دھماکہ خیز مواد, گولیوں کی بڑی مقدار اور رات میں دیکھنے والے آلات بھی ملے ہیں. گرفتار افغان ایجنٹ کی نشاندہی پر ایک کمپاؤنڈ پر چھاپا مارا گیا تو 10 کلو بارود سے تیار بم اور 11 کلو دھماکہ خیز مواد بھی ملا جو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جانا تھا. اس سے پہلے حساس ادارے بلوچستان سے را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کو بھی گرفتار کر چکے ہیں جس کے اعترافی بیان کی ویڈیو بھی جاری ہو چکی ہے. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ ظہری نے افغان ایجنٹ کی گرفتاری پر فورسز کو مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان کے خلاف تمام اندرونی و بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا. محمد اکرم, ایکسپریس نیوز, کوئٹہ. آج وزیر اعظم نے قومی سلامتی سے متعلق ایک اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی جس میں آرمی چیف سمیت کابینہ کے اہم ارکان شریک ہوئے. اس اجلاس میں ملک کی سول اور عسکری قیادت نے پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را سمیت غیر ملکی ایجنسیز کی سرگرمیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کردار عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا. تفصیلات بتائیں گے خالد محمود.
वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली तमाम साजिशों से सख्ती से निपटा जाएगा। गैर मुल्की एजेंसियों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, जबकि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएंगे। ये अहम तरीन फैसले इस्लामाबाद में काबीना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 5वें इजलास में किए गए, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। इजलास में खजाना, दाखिला और दिफा के वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DG ISI समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने दुश्मन एजेंसियों की पाकिस्तान में मुदाखलत पर गहरी तशवीश और सिक्योरिटी इदारों की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में जहां कौमी सलामती से मुतल्लिक उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई, तो वहीं मुसल्लह अफवाज के तरक्याती प्रोग्राम, अमरीका से F-16 तैयारों की खरीदारी और हालिया जोहरी सलामती कॉन्फ्रेंस का मामला भी ज़ेरे बहस आया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर देते हैं। जनूबी पंजाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों, जराइम पेशा और फरारियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। रेंजर्स, पंजाब पुलिस, CTD ऑपरेशन कर रहे हैं और इस ऑपरेशन में पाक फौज की मुआवनत भी हासिल है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको, बताते चलें कि जनूबी पंजाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों, जराइम पेशा और फरारियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक आपको इस अहम खबर से हम आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी हैं और इस ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें दहशतगर्दों, जराइम पेशा और फरारियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। मुस्तफा कमाल के हाथों MQM की एक और पतंग कट गई। मुत्तहिदा के सीनियर खातून रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली बिल्किस मुख्तार पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन गई। मुस्तफा कमाल ने एक बार फिर कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे होती तो अब तक 9-0 बंद हो चुका होता, जबकि बिल्किस मुख्तार कह रही थी कि MQM के कायद को खुशामदी पसंद है। मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहिदा की इमारत से एक और ईंट खिसका ली। MQM की पहली राबता कमेटी की रुकन और MPA बिल्किस मुख्तार पाक सर जमीन पार्टी में शामिल हो गयीं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस वतन परस्ती के काफिले में आज ये शामिल हुई हैं। पाक सर जमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में इंकिशाफ किया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, जबकि कारकुनों के एक बार फिर कत्लो गारत की तरफ धकेला जा रहा है। कोई एस्टेब्लिशमेंट वगैरह नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के अगर होते तो 9-0 जो है वो बंद हो चुका होता, सील हो चुका होता, सेक्टर ऑफिस में बैठे होते हम लोग। पाक सर जमीन पार्टी में शामिल होने वाली बिल्किस मुख्तार ने MQM और सिंध असेंबली की रुकनियत छोड़ने का ऐलान भी किया और MQM के कायद से कई सवालात के जवाब भी मांगे। जब सौलत मिर्जा को फांसी हुई बहुत रोई थी मैं। जब आपके कारकुन जो इर्द गिर्द रह रहे थे आपने उनको क्रिमिनल कह के, जब वो गिरफ्तार हो गए तो कहा क्रिमिनल एलिमेंट। ये वो है जिन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं, ये एसेट थे ये आपका। इनको आपने खुद क्रिमिनल कहा, उनको ओन नहीं करते, आप टिश्यू पेपर की तरह यूज करते रहे हम लोगों को और बाद में आप लाताल्लुक हो जाते हैं। MQM के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले मुस्तफ़ा कमाल मीडिया की तरफ से सवालात के बावजूद फारूक सत्तार के खिलाफ कुछ न बोले। बिल्किस मुख्तार की जुर्रत को सलाम करते हुए उन्होंने दूसरों को भी अपनी जिद्दोजहद का हिस्सा बनने की दावत दी है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएं, कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 245 और सिंध असम्बली की नशिस्त PS 115 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। JUI और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, जबकि जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून ने मुखालफिन के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। तैयारियां भी मुकम्मल हैं। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 245 के लिए 14 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा, जबकि सिंध असम्बली की नशिस्त PS 115 के लिए 13 उम्मीदवार आमने सामने हैं। हल्का NA 245 के वोटर्स की मजमूई तादाद 4,09,655 है। इनमें 2,21,242 मर्द वोटर्स और 1,88,000
413 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इसी तरह हल्का PS 115 में वोटर्स की मजमूई तादाद 1,62,614 है। इनमें 90,413 मर्द वोटर्स और 72,201 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। कराची के दोनों हलकों की नशिस्तें MQM के अरकान असम्बली के मुस्ताफी होने से खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध से DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने मुलाकात की। ज़िमनी इलेक्शन अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर की मुलाकात वज़ीर आला हाउस कराची में हुई। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक मुलाकात में अमन अमान, कराची टारगेटेड ऑपरेशन और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में 7 अप्रैल को 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई।